तुझया अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई ना जान मेरा। राण राव न कोर है, रंग न तुम फकीर। वारी अप अपनी होए, ना बंदे थी। आनंद गुणी निदान, गुरु गरीब निवास, गुरु गरीब निवास। आखां जीवन बिसरै मर जाऊं, आखां जीवन बिसरै मर जाऊं। आखां जीवन बिसरै मर जाऊं। आखण आखा, आखण आखा, साचा नाम। आखां जीवन बिसरै मर जाऊं। आखां जीवन बिसरै मर जाऊं। आखण आखा, आखण आखा, साचा नाम। आखां जीवन बिसरै मर जाऊं। आखां जीवन बिसरै मर जाऊं। साचे नाम की लागे भूख, उत भूखे खाए चलिए दुख। साचे नाम की लागे भूख, उत भूखे खाए चलिए दुख। सुख क्यों बिसरै मेरी माए, साचा साहिब, साचा साहिब, साचे नाए। आखां जीवन बिसरै मर जाऊं। आखां जीवन बिसरै मर जाऊं। आखण आखा, आखण आखा, साचा नाम। आखां जीवन बिसरै मर जाऊं। आखां जीवन बिसरै मर जाऊं।
जाऊं। साचे नाम की दिल वड्याई आज तके कीमत नहीं पाई। साचे नाम की दिल वड्याई आज तके कीमत नहीं पाई। जे सब मिल के आखण पाए वड्डा न होवे काट न जाए। वड्डा न होवे वड्डा न होवे काट न जाए। आखा जीवा बिसरै मर जाऊं। आखा जीवा बिसरै मर जाऊं। आखण आखा आखण आखा साचा नाम। आखा जीवा बिसरै मर जाऊं। आखा जीवा बिसरै मर जाऊं। ना उमर न होवे सोग ना उमर न होवे सोग। देदार है न चूके भोग। ना उमर न होवे सोग। देदार है न चूके भोग। कौन एहो और नाही कोई ना होआ ना तो होए ना तो होआ ना तो होआ ना तो होए। आखा जीवा बिसरै मर जाऊं। आखा जीवा बिसरै मर जाऊं। आखण आखा आखण आखा साचा नाम। आखा जीवा बिसरै मर जाऊं। आखा जीवा बिसरै मर जाऊं। वड्याप ते वड तेरी दात। जिन दिन कर कै कीती रात।
ਜੀਵਾਂ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਬਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਬਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਰਾਣਾ ਰਾਉ ਨਾ ਕੋਰ ਹੈ ਰੰਗ ਨ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਧੀਰ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਬਾਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਤਨੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਫਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਗਏ ਚਲੇ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਕਮਈ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਬਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਸਮ ਕਰ ਮਾਰੇ ਐਸੋ ਕਾਲ ਵਿਡਾਲੀ ਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਚਾਹੇ ਰਾਜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਸਮ ਕਰ ਮਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਛਤਰਪਤੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਦੀ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਨਾ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਸਭੇ ਕੋ ਚਾਲੈ ਝੂਠ ਛੋੜ ਜਾਏ ਪਾਸਾਰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਵਹਿ ਸੌਰ ਨਰ ਦੇਵਾ ਊਠ ਸਿਧਾਰਹਿ ਕਰ ਮੁੰਜਨ ਸੇਵਾ ਜੀਵਤ ਪੇਖੇ ਜਿਨੇ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਿੰਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਮੌਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਐਸਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਤੁੱਛ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 10ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ शिवजू अवतरा, काल पाए कर विशन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। अच्छा कहते जरा ख्याल करियो, गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते है भाई काल पाए। काल काल तो भाव, काल के दो अर्थ होते हैं। एक काल का अर्थ है समा, समा ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਟਾਈਮ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮੌਤ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਪਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ शिवजू अवतरा। महाराज कहते एक दिन इत्थे ब्रह्मा आया इस धरती ते। ब्रह्मा आया, उन्हें जन्म लिया, जन्मे कि वो काल तो बच गया, मौत तो बच गया? पातशाह कहते बिल्कुल नहीं। जन्म बाद विच हुंदा है, मौत पहला लिखी जाती है। ख्याल करें, जन्म बाद विच है, मौत पहला है। पातशाह जी की बाणी सानू समझाती है, कहते भाई मौत, पातशाह कहते मरण लिखाए। ख्याल करियो, तेरी जिंदगी दे विच पहला मौत लिखी गई है। मरण लिखाए मंडल मह आए, जीवन सच है माई। तेरा आ जिहड़ा जीवन है ना, माया ने बाद विच साजिया, बाद विच। ते फिर पहला की सी? पहला तेरी मौत, जितने तेरे श्वास सन पहला तेरे श्वास लिख दिते गए, श्वास लिख दिते गए। एक भी श्वास तेरे कोल वध नहीं है, एक भी श्वास तेरे को घट नहीं है। इस करके काल पाए ब्रह्मा बपतरा। महाराज कहते मौत लैके ब्रह्मा इत्थे आया। शिव जी नूं तां दुनिया मौत दा देवता कहती है, मौत दा देवता। शिव जी तां फिर कहते मौत तो बचिया होवेगा? महाराज कहते नहीं। काल पाए शिवजू अवतरा। अवतारा तो भाव अवतार होना, जन्म होना, पैदाइश होनी। महाराज कहते जे किसी दिन इत्थे शिव जी भी आया सी, काल पाए शिवजू, ते शिव जी भी अपनी पहला मौत लिखा के ले गया। काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा। एक दिन इत्थे विष्णु का प्रकाश होया, विष्णु जन्मे। कि विष्णु मौत तो बचिया होया? महाराज कहते बिल्कुल नहीं, वो भी नहीं बचिया। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, जिधर विष्णु का प्रकाश होया सी, ओदे प्रकाश, ओदे जन्म तो पहला भी ओदे जिहड़े लेख सन, ओदी जिहड़ी जीवनी सी, ओदी जिहड़ी जिंदगी सी, जिंदगी दे विच पहला मौत लिखी गई। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा। एक क्यों? सवाल तो पैदा होगा ना। ते पातशाह जी फिर किसी सवाल का उत्तर नहीं छड़ते जिहदा ना दिता होवे। महाराज कहते जी खेड ही सारी मौत दी है, क्योंकि सकल काल का किया तमाशा।
तमाशा तो भाव का खेड, नाटक, चेटक। महाराज कहते ये सारी खेड ही मौत दी है। संसार की है, संसार तो भाव खेड मौत दी है। ये सारी खेड है। मौत दी खेड किवें? इत्थे जे एक घर दे विच कोई जन्म लैंदा है तो उसे घर दे विचों कोई वडेरा जा रहा है, उसे घर दे विचों वडेरा कोई जा रहा है तो कोई नवा बीज पुंगर रहा है, नवी पैदाइश हो रही है। दावा अगन बहुत तृण जाले, कोई हरिया बूट रहे री। महाराज कहते एक अग है, ये अग सब साड़ती है, सब ते पिछे पैदाइश भी हो रही है। या कह लो किवें जिवें बापू करनैल सिंह पारस रामू वाली है, उन्होंने कविश्री सी ना, उन्होंने गाया सी जग जंक्शन रेलों का गड्डी एक आवे एक जावे। पातशाह जी कहते इत्थे कोई आई जा रहा है ते जाई जा रहा है, यही एक तमाशा है, यही एक खेड है। ये खेड की है? बस मौत की खेड है। ते मौत की खेड इस संसार दे विच आउंदे लोग जाना सब ने है, रहना कोई नहीं। बस एक नहीं लाहा लै चले, एक नहीं लाहा लै गए, एक चले मूल गवाए। महाराज कहते एक आए इत्थे जिन्हां ने बंदगी की, जिन्हां ने सिमरन किया, निंदिया तो बच गए, चुगली तो बच गए, ईर्खा तो बच गए, द्वैत भावना तो बच गए, बैर विरोधता तो बच गए। जुड़े किते नाल? गुरु दे नाल जुड़े। टाइम खराब नहीं किया, समा खराब नहीं किया, ते समा ना खराब करदियां होइयां जीवन गुरु दे हुक्म दे विच, गुरु दे भाणे दे विच बतीत किया, वो सफल कर जाते हैं। जीवन जीवन सफल कर जाते हैं। एक ऐसे लोग होया करते हैं, उन्होंने जिंदगी की कदे कदर ही नहीं होया करती। सारी जिंदगी नशियां दे विच, बेकार धंधियां दे विच, वो धंधे जिहड़े किसी काम दे नहीं हुंदे। इत्थे धंधे तो भाव इउं ना समझो कि साडा कामकार हरेक बंदे वास्ते जरूरी है। गुरु नानक पातशाह जी ने 4 उदासियां बाद विच कीतियां। पहला काम कीता, पहला काम पशु चारे, मੱਝਾਂ चारियां ते गुरु सवारियों जिहड़े घर दे विच काम करन वाले सन, काम करते रहे। पहला उदासियां करन तो पहला दुकान चलाई, हड्डी चलाई, जिहड़ो असीं मोदी खाना कह दिंदे आ, मोदी खाना चलाया। पहला काम कीता, काम करके दुनिया नूं दसिया। की दसना कीता? भाई गुरदास जी समझाउंदे ने, किरत विरत कर धर्म दी हथों दे, किछ घाल कमाए। जे बंदे दी किरत सुचज्जी है, किरत चंगी है, भाई गुरदास जी कहते फिर उसकी बिरत भी चंगी होगी, बिरती भी चंगी होगी। जे किरत दे विच मैल है तेरी दे विच, ते फिर तेरी बिरती भी सुची नहीं हो सकती, बिरती विच भी मैल होगी। किरत विरत कर धर्म दी हथों दे, किछ घाल कमाए। पातशाह जी कहते फिर तेरा दान दिता होया सफल होता है, प्रवान होता है। इत्थे उस किरत की गल नहीं, उस धंधे की गल नहीं जिहड़ा असीं अपने जीवन जिउण वास्ते करदे हां। वो जरूरी है, अति जरूरी है, अति जरूरी। ते गुरु सवारियों इत्थे वो धंधे जिहड़े बिल्कुल बेकार, निंदा चुगली इत्यादक समय नूं बर्बाद करन वाले, उन्हां धंधियां दा पातशाह जी ने जिक्र किया है। पातशाह जी किरपा करते हैं। एक ना ऐसे लोग हुंदे ने अपना जीवन सफल कर जाते हैं, ते जिहड़े सफल कर जाते हैं पातशाह जी उन्हां बाबत कहते ने, आए से प्रवान। महाराज कहते वो आए प्रवान हो गए, उन्हों का जीवन प्रवान हो गया। जिहड़े खाली हथ जाण वाले ने
महाराज कहते चले जुआरी दोए हाथ झार। पातशाह कहते वो जुआरी अपना जिंदगी नू अपने जीवन नू जुए दे विच हार के तो खाली हाथ जा रहे हैं। एक ने लाहा लै गए, एक चले मूल गवाए। हुण मूल की सी? तेरे कोले सवास मूल सन, सवास मूल। इन्हां मूलां दे आसरे, इस मूल दे आसरे तू प्रभु परमात्मा दा सिमरन करके परमात्मा दी बंदगी बख्शिश एक ब्यास दे विच तैनूं मिलनी सी। महाराज कहते तू समझिया नहीं, अपना अगा भी गवा लिया ते पिछा भी गवा लिया। पर गुरु सवारियो नाम दा जपना औखा बहुत है, बड़ा औखा है। कितना औखा नाम दा जपना इस पावन शब्द दे विच सतगुरु पातशाह जी सानू समझा रहे ने। जेड़ा अज शब्द आपां आलाप रहे हैं, सरवण कर रहे हैं, गुरु नानक पातशाह जी दे पावन पवित्र मुखार बिंद दे विचों उचारण होया आसा राग दे विच। आसा राग दे विच हर रोज आपां इस शब्द नूं रहरास साहिब दे विच पढ़दे हैं, रहरास साहिब दे विच सुणदे हैं हर रोज। पातशाह जी इस पावन शब्द दे विच की किरपा करते हैं। आओ जी बख्शिश करन सतगुरु जी, समझना करिए, जानना करिए इस पावन शब्द के विचार नूं। साचे नाम की लागे है दुख। साचे नाम की लागे भूख, उत भूख खाई चली है दुख। मेरी माए साचा साहिब, साचा साहिब साचे नाए, साचा साहिब, साचा साहिब साचे नाए। आखा जीवा पावन शब्द गुरु नानक पातशाह जी ने मुखों उच्चारण होया है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के 9 अंग ते सुसुप्त है। नाम जपना कितना औखा, कितना कठिन। क्यों कह लो कि गुरमत दे नाल जुड़ना कितना औखा है, कितना कठिन है। पातशाह जी बख्शिश करते हैं। जो पहली उदासी करके आए, बाबा मरदाना जी कह लगे पातशाह घर के कोल दी लंघण लगे हैं, बच्चों का मोह जाग आया। जे आग्या होवे पातशाह घर जावां, बच्चों की सुख शांति का पता लग जाएगा। गुरु नानक पातशाह जी कहते भाई जाया, पर एक गल याद रखी कि काम अपने कोले बहुत बड़ा है, ये समा थोड़ा, समा थोड़ा। काम बड़ा क्यों?
समा थोड़ा क्यों? 800 साल पिछला मुगलिया हुकूमत की गुलामी झलदियां सानू हो गए सन। उस तो पहला योगेशिया दे विचों पुजारी आया, ब्राह्मण आया, उन्हें आके साडे विच इतने वहम भरम फैला दिते, किते पौण दा वहम आ कोई होवे ना समागम मर्ग दा, साडे घर दे विच होर कोई चेता रहे ना रहे, संस्कार वाले दिन किते देखदा सीधा आवे कहणगे जी पौण दे विच बनायो, किसे नूं पुछो कि कारण की है जी, कोई पता नहीं किड्डा वहम है, किड्डा भरम है। भोग वाले दिन पुछ लो जी पौण दे विच, कपड़ा खरीदना पौण दे विच, कोई वस्तु लैनी पौण दे विच। हज़ारां सालां तो साडा मानसिक, साडा मन गुलाम कीता होया है। असीं वहमां दे गुलाम हां, भरमां दे गुलाम हां। कारज बहुत वड्डा, उम्र कितनी? सिर्फ 70-72 साल गुरु नानक पातशाह जी दी। एक गुलामी के जंगल संगल, गुलामी के संगल साडे ते बहुत वड्डे पए हुए हैं। अज किहड़ा असीं छड्डते, अज भी साडा उही हाल है। 10 पातशाहियां साडे कोलों होके चले गईयां ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी पातशाह हाज़र नाज़र ने कदे बाणी नूं समझण की कोशिश नहीं की, कदे जानण की कोशिश नहीं की। उही हाल अज है साडा। असीं कहने आज़ादी, किहड़ी आज़ादी? गुलाम आ वहमां भरमां दे। दिन चढ़दा तां वहम भरम, दिन छिपदा तां वहम भरम। घर दे विच कारज कोई होवे तां साडे वहम भरम, निरे वहम भरम साडे विच बड़े होए ने। पंडित सरैणी ने कह दिता कि आ जिहड़ा हुण समा चल रहा है, ये महीना कहते अशुभ है, माड़ा माड़ा अशुभ कह दिता। साडे घरां दे विच कोई ब्याह शादी हुण कोई भी नहीं रखिया होया किसी ने, क्यों? क्योंकि वहमां दे विच फसे होए, याद नहीं आंदे। कारज वड्डा, मरदाने जाया, कारज वड्डा है, समा छोटा है। आप पातशाह कहते मैं घरे नहीं जाना, क्यों? जे मैं घर चला गया घरदियां ने रोक लेना। माता बहुत प्रेम करते, पिताजी बड़ा प्रेम करते। चंद्रभान का को सुनिया है, आख्या है इतिहासकारां ने। गुरु नानक पातशाह जी उत्थे बैठे, मरदाना जी घरे गए ते मरदाना जी जदों घरे गए, माता जी नूं तृप्ता जी नूं पता लग गया कि नाल मरदाना जी गए सन, घर आ गए पर मेरा पुत्र नहीं आया। पिता महत चंद कालू जी नूं पता लग गया, चाचा महत चंद लालू जी नूं पता लग गया। चंद्रभान दे खूह ते गए, गुरु नानक पातशाह जी नूं घरे लिआंदा। पातशाह जी कहते जाना है, पिता जी कहते रुको कुछ दिन, रुकना कीता। ते हुण पिंड दे लोग मिलण आउंदे ने, गुरु नानक पातशाह जी बहुता किसी दे नाल बोलदे नहीं। सुख शांत माड़ी मोटी पुछी चुप, बोलदे नहीं, क्योंकि जिहड़े प्रभु परमात्मा की जात दे विच जीवन जिउण वाले हुंदे ने, वो दुनिया दे नाल बहुता गल नहीं करिया करदे, वखरे रहा करते हैं। उन्होंने चाल वक्री, भगतां की चाल निराली, उन्होंने चाल वक्री होया करती है, वखरा जीवन। एक दिन माता तृप्ता जी ने पूछ लिया, पुत्र तू गलबात क्यों नहीं करता? कहने लगे माता जी मैं परमात्मा का नाम जपता हूं, मैं बंदगी करता हाँ। बंदगी परमात्मा की सिरता कैसियां ने, उन्हां दा जिक्र सारा। पातशाह जी पूछन लगे तू इन्ना नाम क्यों जपदा है? माता जी जे मैं नाम जपदा हाँ, जिउंदा ही तां हाँ। आखा जीवां जिसरे मर जाओ,
मैनू मेरा परमात्मा विसर जावे, भुल जावे, मैं मर जाना हाँ। किवें मर जाईदा है? किवें? ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि साडे प्राण निकल गए, शरीर जिउंदा है, खाने आ, पहनते आ, सब कुछ कारो विहार करते हैं, सब कुछ चलता है, बस एक रब दे वल्लों साडा मन मर गया। मन साडा गुरु दे नाल जुड़न नूं तैयार नहीं होंदा, तैयार नहीं होंदा। मैं जपदा हाँ, जप जप के जिउंदा हाँ, क्योंकि जीवन पातशाह जी समझाउंदे ने, फिट अवेहा जीविया, जित खाए ਵਧਾਇਆ पेट। महाराज कहते परमात्मा की बंदगी तो बगैर जिहड़ा जीवन है ना, वो जिहड़ा त्रिकार है उस जीवन में, फिट लानत है उस जीवन में। जे जुड़िया नहीं, जे जुड़िया होया है तादा फिर परमात्मा की बख्शिश ही बड़ी है। पौ 12 ने आखा जीवा है मां मेरीए, मैं नाम नूं आखदा हाँ तां जिउंदा हाँ, विसरै मर जाओ। जदों मैनूं परमात्मा का नाम विसर गया, विछोड़ा पै गया मेरा परमात्मा के नाम तो, तां मैं आत्मिक तौर पर मर जाना हाँ। मां कह लगे माता तृप्ता जी, गुरु नानक पातशाह जी के नाल सारा संवाद है माता जी का, बिरती जोड़ के रखे, ख्याल बना के रखे। ऐ मेरे पुत्र, ऐ मेरे लाल, तू तां जे जपदा है तां जिउंदा है, पर नाम जपण वाले तो होर भी बथेरे ने, बंदगी तो होर भी बड़े करते हैं, सवेरे शाम बंदगी करते हैं, तो उस तो बाद आपके काम धंधिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ लग जाते हैं, कारोबारां ਦੇ ਵਿੱਚ लगते हैं। वो हर समय क्यों नहीं जपते? पातशाह जी कहने लगे, आखण औखा साचा नाओ है मां मेरी। परमात्मा का जिहड़ा नाम जपना है, जे तू पूछे कि दुनिया के लोग बहुते क्यों नहीं जपते, तो इसका उत्तर होगा कि यह नाम मेरी है। परमात्मा का नाम जपना औखा बहुत है, कठिन बहुत है। कितना कठिन है? एक उदाहरण होर लो। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के कोल पंडित इकट्ठे होके आ गए, कह लगे पातशाह साडा धंधा बड़ा सोहना चलता सी, कारोबार बड़ा सोहना चलता सी, लोग साडे कोल पत्रियां बनवाउंदे, टेवे कढवाउंदे, पर सच्चे पातशाह जदों तो तुहाडा प्रचार होया अनंतपुर साहिब के इलाके दे विचों लोकां ने टेवे पत्रियां बनवाउणियां बंद कर दित्तियां, साडा काम बढ़ता जा रहा, साडे ते मेहर करो, बख्शिश करो। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहते भाई किन्ना कमा लैंदे सी? कहते जी 44 रोज़ दी, अज तो लखां दे विच है 44 रोज़ दी 44। महाराज कहते 8 आने दवांगे रोज़, आ जाया करो सवेरे, हर रोज़ खाण वास्ते खीर माल पूड़े चंगा चंगा पकवान मिलेगा, ते शामी जांदे जांदे वस्त्र भी देवांगे, कपड़े भी देवांगे, आ जाओ सवेर को, चंगा चौखा गुजारा होगा तुहाडा। आ गए सवेर को, करना की है? पातशाह जी ने माला लई ते सारिਆਂ ਦੇ हथ ਵਿੱਚ फड़ा दी, जितने आए इकट्ठे होकर। आ लो भाई आलम सिंह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का गणवई सी, नज़दीकी सिखां दे विचों सिख सी भाई आलम सिंह। कुर्बानी भी बहुत वड्डी है भाई आलम सिंह की। भाई आलम सिंह की ड्यूटी लाई, सिखा इन्हां सारिਆਂ का फासला बना दे 2-2 3-3 फुट का, एक दूसरे के नाल गोडा ना बचे, फासला बना दे, थोड़ी थोड़ी विथ ते बैठन, फासला बना दे। आ लो ਤੁਹਾਡਾ पहला पीरियड शुरू सवेर तो लैके दोपहर तक बैठते हैं तुसी वाहिगुरू वाहिगुरू राम राम जपी जाना है, किसी ने गल नहीं करनी, चौकड़ी मार लेनी है तो चौकड़ी खुलनी नहीं चाहिए। भाई आलम सिंह की ड्यूटी पहरेदार आलम सिंह लगे, ये हुण पहला दिन
दोपहर तक पहला तो चाई चाई लगे कि बैठना ही है, बैठना की औखा है, कोई खास गल नहीं, बैठ जाते हैं। थोड़ा चिर बैठे, लत्तां दे विच अकड़ा आने शुरू हो गए, लत्तां थकणियां शुरू हो गई, कमर दर्द शुरू हो गया। ते दोपहर को उठे, प्रशादा छकिया, सब ने आपस में विचार करन लगे कि काम तो सौखा ही सी, पर होंदा ही नहीं, सब तो बैठना बड़ा औखा है। कहते चलो अज दी दिहाड़ी पूरी करो, कल नूं देखते हैं की बनता है। जब कल की गल की, कल नूं देखांगे की। जदों शाम हुई, पातशाह जी दे पास गए, सारे इकट्ठे होकर पंडित कह लगे महाराज आ चुको माला, दुनिया दे विच सारे काम सौखे ने, आ नाम जपना बैठ के बंदगी करनी सारिਆਂ तो औखा काम है, बैठना बहुत औखा, बड़ा मुश्किल, बड़ा कठिन। महाराज कहते कल नूं आ जिओ, अज तुहानूं अठियानी दिंदे आ, 50 पैसे दिंदे आ, कल तो 1 रुपया कर देंगे। महाराज कहते नहीं, राहु केतु है बैल हमारे, साढ़ सपी है खेती, पत्री हमारी बड़ी शिकारण, मार लियावै छेती। किसी को कह देना कि तेरे ते राहु का पहरा है, तेरे ते केतु का पहरा है, किसी को पत्री बना के दे देनी, किसी को टेबा बना के दे देना, बस कहते ये ही गुजारा कर लवांगे। पर नाम जपना सारिਆਂ तो औखा, बैठना सारिਆਂ तो औखा, बहुत कठिन है। इस करके पातशाह कहते आखण औखा साचा नाम। महाराज कहते नाम का आखना, नाम का जपना सारिਆਂ तो औखा काम है, सारिਆਂ तो कठिन काम है। ऐ मेरे पुत्र, तू इन्ना नाम क्यों जपदा है? क्यों जपदा है? मां मेरी साचे नाम की लागे भूख, मैनू भुख लगी हुई है। कादी? एक सच्चे नाम की, एक परमात्मा की बंदगी की। हुण इहदा लाभ की है? नाम जपण दा, बंदगी करन दा फायदा की है? क्योंकि जो भी काम करते हैं आपां पहला फायदा देखते हैं। जे झोना लाया तो आप वेखिया कि अज तो 3 महीनों 4 महीनों वढांगे, 5 महीनों वढांगे, सानू झाड़ आवेगा, साडी जिंदगी दी जरूरतां पूरीआं होणगीआं। फायदा देखिया ना, कणक बीजांगे पहला फायदा देखांगे। कोई दुकानदारी करता है, कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेसमैन है, सारा काम असीं पहला फायदा देखते हैं। इस काम दे विच सानू फायदा बहुत हो जाएगा। तैनू की फायदा है नाम जपे का? की लाभ है? पातशाह जी कहते उत भूखा खाए चली है दुख, मां मेरी सुन लै। पहली गल, जेड़ा बंदा नाम जपदा है ना, बंदगी करता है, ओदे अंदर पदार्थां दे इकट्ठिया करन दी भुख खत्म हो जाती है। पदार्थां दे इकट्ठिया करन दी, मैं आ भी लै लवां, मैं ओ भी लै लवां, मैं होर जोड़ लवां, मैं होर जोड़ लवां, ये तृष्णा खत्म हो जाती है। तृष्णा खत्म। नाम जपण वाले बंदे दे अंदर शांति आ जाती है, टिकाव आ जाता है। ते इस नाम जपण दा फायदा की हुंदा है? औखद तेरो नाम दयाल, मोहे आतुर तेरी गत नहीं जानी, तू आप करहे प्रतिपाल, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। की फायदा है? पातशाह जी कहते ऐ भाई, सिमरन करने वाले बंदे दे दुख नेड़े नहीं आते। इसनूं भी जरा समझिए, ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ दुख नहीं आते। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ? ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੰਡਾ ਵੱਜਿਆ, ਕੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ? गुरु अंगद दे महाराज जी का जो विरोध शुरू होया, श्री चंद ने विरोध करना शुरू किया कि उन्होंने अंदर पीड़ नहीं हुई। गुरु अमरदास महाराज जी का विरोध शुरू होया, गुरु
रामदास महाराज जी का विरोध है घर दे विच ही। काहे पूत झगड़त हों संग बाप, जिनके जड़े बडीरे तुम हो, तिन स्यो झगड़त पाप। पुत ही झगड़ा करन लग गया सी, ते जेड़े बाप दा पुत झगड़ा करे ते बाप दे मूहरे पुत बोले, वो बाप किन्ना क दुखी हुंदा होवेगा तां यही जानदा है। विरोध सी ना। फिर गुरु अर्जन देव महाराज तसीहियां दा दौर शुरू होया। तत्तियां तवियां ते बिठाउणा, सीस दे विच तत्ती रेता पाउणी ते फिर उबलदे पानी दे विच देग दे विच बिठाउणा कीता। ते गुरु सवारियो शरीर दे उत्तों चमड़ी लै गई सी सारी। की शरीर नूं दुख नहीं हुंदा? इस शरीर नूं दुख आउणे ने, क्योंकि जिस प्रकृति दे विच रह रहे हैं प्रकृति दुखां दी भरी हुई है। प्रकृति दुखां दी भरी हुई है। अंदर दुख सहण दी ताकत इन्नी आ जाती है कि उस ताकत दे सामने बड़े तो बड़ा दुख भी तेरा किया मीठा लागै, हर नाम पदार्थ नानक मांगे वाली अवस्था दे विच दी गुजर जाता है। वो दुख बहुत छोटे लगन लग जाते हैं इस शरीर के सामने। वो दुख असल में दुख ही नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि ये आत्मा दुखी नहीं होती। आत्मा परमात्मा के नाम दे विच लिव लीन हो जाती है। तो फिर कोई इस शरीर को दोखाड़ करी जावे, आरे नाल चीरी जावे, रंबियां नाल ऊपर लाही जावे, भावे पुट्ठियां खल्लां उतारी जावे, जितना मर्जी जुल्म होई जावे, फिर इस शरीर को वो दुख लगता ही नहीं। दुख तो है, दुख नूं झल्लण दी समर्था वड्डी हो जाती है, दुख नूं सहन करन दी ताकत वड्डी आ जाती है। इस करके मां मेरीए प्रभु परमात्मा दा नाम जपण दे नाल उत भूखा खाए, नाम रूपी भोजन नूं खाण दे नाल चलिया है दूर, दुख खत्म हो जाते ने। सो क्यों बिसरै मेरी माए, ये रहाओ वालियां पंक्तियां ने। रहाओ वालियां पंक्तियां शब्द का घर होया करदियां ने। शब्द का मूल सिद्धांत सारा रहाओ दे विच ही आ जाया करता है। ऐ मेरी मां सो क्यों बिसरै, जेड़े परमात्मा का नाम जपण दे नाल एडी समर्था आ जाती है, एडी ताकत आ जाती है, एडी पावर आ जाती है, मैनू को क्यों बिसरे, क्यों भुले मैनू सो क्यों बिसरै। मेरी माए साचा साहिब, साचा नाई वो परमात्मा आप सच्चा है, ते उसका न्याय वो भी सच्चा है, उसकी मर्यादा वो भी सच्ची है। अगलियां पंक्तियां विच की कृपा करते हैं। सच्चे नाम की दिल वड्याई, आप सके कीमत नहीं पाई। सच्चे नाम की दिल वड्याई, आप सके कीमत नहीं पाई। जे सब मिल के आखण पाई, वड्डा न होवे, वड्डा न होवे, काट न जाए, वड्डा न होवे, वड्डा न होवे, काट न जाए। आखां जीवा सरै मर जाओ, आखां जीवा सरै मर जाओ। आखण आखण आखा साचा नाम, आखां जीवा सरै मर जाओ, आखां जीवा सरै मर जाओ।
अगलियां पंक्तियां। गुरु नानक पातशाह जी के सन्मुख माता जी बैठे ने, सामने बैठे ने। माता जी का मुख गुरु नानक पातशाह जी वाले पासे है ते गुरु नानक पातशाह जी का मुख माता जी वाले पासे, दोनों के पासे सन्मुख। जिवें आपां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के सन्मुख बैठे, माता जी सवाल कर रहे हैं ते सतगुरु पातशाह जी उत्तर दे रहे हैं। हुण माता जी ने अगला सवाल किया। अगला सवाल माता जी कहने लगे, उस नाम की, उस परमात्मा की वडियाई कितनी वड्डी है कि कोई परमात्मा की समग्र महिमा कह सकता है, सारी महिमा कह सकता है। पातशाह जी कहते सात समुद्र है, मस करो कलम करो बनराए। सत्ता समुद्रा की स्याही बना लीए। जितनी वनस्पति है, जितने दरख्त ने, इन्हां सारियां दियां कलमां घड़ लईआं जाण। कागज केड़ा होवे? वसुदा कागज जो करो, धरती नूं कागज बना लईए, सारी धरती कागज बन जाए, पेपर बन जाए। हर जस लिखण ना जाए। महाराज कहते मां मेरीए, तू उस परमात्मा के पूरे नाम की वडियाई गल करती है। साचे नाम की तो कोई तिल मात्र भी वडियाई नहीं कह सकता। तिल मात्र अपने घरों के फसल आम होती सी ना, हुण तां दो ही चीज़ां ने साडे कोल, झोना ते कणक, कणक ते झोना। पहला तिल बीजिया करते सी, घर घर दे विच होया करते सी तिल। कोई तिल जिन्नी भी वडियाई कह नहीं सकता। वडियाई बहुत वड्डी है, क्यों नहीं कह सकता? एक मैं बेनती करदा, गुरबाणी की व्याख्या कर, गुरबाणी ही करती है। किसी बंदे दे विच कोई जरूरत नहीं कि गुरबाणी की व्याख्या कर देवे। क्यों नहीं कह सकता? बड़े सवाल पैदा हो गए ना। बड़े सवाल का उत्तर कित्थों मिलेगा? बाणी दे विचों ही, बाणी दे विचों उत्तर मिलेगा। की उत्तर मिलता है? एवड ऊंचा होवे कोई, इस ऊंचे को जाने सोए। एक बिल्डिंग दे विच बैठे ना आपां, दरबार साहिब 20-22 फुट की इमारत है, उच्ची है। हुण असीं कियास अराइयां लाइए कि उपर आ होवेगा, उपर ओ होवेगा, वो एडा वड्डा होवेगा, उसकी अवस्था उपरों ऐसी होवेगी। की साडियां थल्ले खड़ियां दियां ये कियासियां, ये साडे अंदाजे, ये साडा अनुभव सानू सच तक पहुंचा देगा? बिल्कुल नहीं। एवड उच्चा होवे कोई, एडा बड़ा कोई उच्चा होवे, इस उच्चे को जाने सोए। महाराज कहते उस उच्चे नूं जेड़ा कोई एडा बड़ा उच्चा होवेगा वो जान सकेगा। इत्थे तां सब ते बड़ा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। दुनिया दे विचों सारियां तो बड़ा कौन है? सतगुर। जिथे विश्राम कौन कहता? नानक। जिन कल राखी मेरी, वो मेरा सतगुरु इस कलयुग के समय दे विच मेरी इज्जत रख रहा है। ऐ मां मेरी ये आख थके, आखण वाले आख आख के थक गए, थक गए। कीमत नहीं पाई, किसी ने कीमत उसकी नहीं पाई, कोई कीमत जान नहीं सकिया। साईं नाम अमोल, कीम ना कोई जान दो, जिन्ना भाग मथाहे से नानक हर रंग मान दो। पातशाह जी कहते परमात्मा का नाम एडा अमुला है, एडा अमुला, उसकी कीमत नूं कोई नहीं जान सकिया। और माता जी ने फिर अगला सवाल कर दिता, माता तृप्ता जी ने, जे सब मिलकर आखण पाए, जिन्ने असीं बैठे हाँ, बाहर आ, अंदर आ, इधर आ, उधर आ, जे सब मिलकर
ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਮੇਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ 4 ਸੁਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਗੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਧਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਐਡਾ ਗੁਣ, ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਗੁਣ, ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਕਥਾ ਵਾਚਕ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਦੇ ਪਿੱਛੂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਬੁਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਫਲਾਣਾ ਬੰਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਘੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਾਬਤ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਮੀ ਜਮਾਨ ਕੇ ਵਿਖੇ ਸਮਸਤ ਏਕ ਜੋਤ ਹੈ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਮੀ ਜਮਾਨ ਕੇ ਵਿਖੇ ਸਮਸਤ ਏਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਨਾ ਬਾੜ ਹੈ ਨਾ ਘਾਟ ਹੈ, ਨਾ ਬਾੜ ਘਾਟ ਹੋਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਉਸਤਤ ਕਰੀ ਜਾਓ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਓ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਵਾਲ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੀ ਉੱਤਰ, ਆਓ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ। सोग देतार है न चूकै भोग, ना उमर न होवै सोग देतार है न चूकै भोग, कौन एहो और नाही होए, ना को होआ ना को होआ ना को होए, ना को होआ ना को होआ ना को होए। आखा जीवा बिसरै मर जाओ, आखा जीवा बिसरै मर जाओ। आखण आखा साचा नाम, आखा जीवा बिसरै मर जाओ, आखा जीवा बिसरै मर जाओ। अगला सवाल माता जी ने कर दिता, माता तृप्ता जी ने की कहते, माता जी ऐ मेरे पुत्र मैनू ये दसना कर, समझाना कर कि परमात्मा नूं कदे मौत भी आवेगी, कि परमात्मा कदे मरेगा भी। जिद्दण परमात्मा मर जाएगा, जिहड़े उहदे भगत ने, बंदगी करन वाले ने, उन्हां नूं तां बहुत ज़्यादा अफसोस होवेगा, सोग होवेगा। किसी दे मरग दे समय ते असीं सारे ही जाने हैं। सरसरी एक गल कहने हैं कि सानूं बहुत दुख है,
बहुत अफसोस है। कुछ समय वास्ते चिंता करते हैं तो उस तो बाद दुनिया के कारोबार के विच फिर उसी तरह ही लिप्त हो जाते हैं। पर एक गल याद रखियो, जिस तन लागी सोई जाने अवर के जाने तो पीर भरैया। जिहदे तन नूं लगी हुंदी है ये दुख, उहनूं पता हुंदा है कि कितना कुछ दुख है, कितनी कुछ तकलीफ है। बहुत परिवार मेरे संपर्क दे विच ने ऐसे, बहुत जिन्हां दे घरां दे विचों धीआं पुत्तर कई कई साल हो गए उन्हां नूं गुजरे वो उन्हां दीआं फोटोआं नूं अज भी सीने नाल ला के मैं रोंदे देखदा। उन्हां दी जदों गल करदे आ उन्हां दी अखां दे विच अथरू आ जांदे ने, क्योंकि जिहड़ा मोह अंदरों हुंदा है वो दुनिया नहीं जानदी। वो तां अंदरों हूक उठदी है ते अंदर ही समा जाती है ते दुनिया नूं तां सुनाई भी नहीं दिंदी। अंदरों उठदी है, अंदर ही समा जाती है। जिद्दण रब मरिया, परमात्मा मरिया, भगतां नूं तां अफसोस बहुत होवेगा। बादशाह कहण लगे, मां मेरीए ना वो मरै, ना होवे सोग। ना परमात्मा ने कदे मरना है ते ना ही कदे अफसोस होना है, सोग होना है। ते उहदी बख्शिश कितनी वड्डी है, देंदा रहे ना चुकै भोग। भोग तो भाव पदार्थ, भोगना वस्तुआं दा वरतना। जुगां जुगंतरां तो परमात्मा अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ वस्तुआं दिंदा आ रहा है, दिंदा आ रहा है ते कदे उहदियां वस्तुआं खत्म नहीं होईयां। प्यो दादे का खोल डिठा खजाना, तां मेरे मन भया निधाना। रतन लाल जाका कछु न मोल, भरे भंडार अकूट अतोल। खावहें खर्च है रल मिल भाई, टोट ना आवे वध दो जाई। महाराज कहते घाटा नहीं आया कदे खजानियां दे विच, कदे टोट नहीं आई। माता जी कहन लगे, पुत्र इहो से गुण फिर गुण किहदे किहदे विच ने, किहदे किहदे विच। पातशाह जी कहन लगे, गुण इहो होर नाही कोई। मां मेरीए ये गुण कल्ले परमात्मा दे विच है, दुनिया दे विच होर किसे विच भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ना को हुआ ना को होए, परमात्मा वर्गा दुनिया दे विच ना कोई हैगा ते ना ही कोई अगे होवेगा, नहीं होवेगा। अगलियां पंक्तियां की कृपा करदे ने। गुण तेरी दात, जिन दिन कार्य कीती रात। जे वड्याप ते वड तेरी दात, जिन दिन कार्य कीती रात। खसम विसारे ते कम जात, नानक नावै बाज सनात। नानक नावै, नानक नावै बाज सनात। आखा जीवा बिसरै मर जाऊं, आखा जीवा बिसरै मर जाऊं। आखने आखा साचा नाम। आखा जीवा बिसरै मर जाऊं, आखा जीवा बिसरै मर जाऊं।
ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ 5-4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕੁ ਵੱਡੀਆਂ, ਜੇਵੜ ਆਪ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ ਨਾ, ਏਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਓਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਓਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ। ਦਾਤ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਦਾਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਿਰਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗੋ ਕੁਝ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੁੱਧ ਨਾ ਮੰਗੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਤ ਨਾ ਮੰਗੋ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾ ਮੰਗੋ। ਅਸੀਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਗੋਗੇ, ਐ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਦਾਤਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਮਗਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਜੁੜ ਗਏ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੋਗੇ ਤੇ ਦਾਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਭੱਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਹਰੇ ਭੱਜੀਆਂ। ਇੱਕ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੂਜੀ ਖੜੀ। ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਬੇਨਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ ਨਾ, ਓਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕਿਸੇ ਦਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਘੱਟ ਆ, ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵੱਧ ਆ। ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵੱਧ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਤੇ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ 95% ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਤਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਤਿਤ। ਇਸ ਦਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣਨੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਨੇ ਘੋੜੇ ਤਾਂ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਗੱਲ ਨਾ ਬੋਲਿਓ, ਜੇ ਆਹ ਬੋਲਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਟੁੱਟਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਕਸਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਦਾਤ ਜੇਵੜ ਆਪ ਤੇਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਦਿਨ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਦਿਨ, ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਾਈ ਦਿਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਦਿਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਰਾਤ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲਾ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦੋਨੇ ਦਾਈ ਤੇ ਦਾਇਆ ਨੇ। ਦਾਈ ਤੈਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੋਰੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦਾਇਆ ਖਿਡਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ये दो वड्डियां दातां खसम विसारे ते कमजात, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ, ਕਦੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ। ਖਸਮ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਖਸਮ ਗੁਰੂ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਮਜਾਤ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਟੀ ਜਾਤ ਨੇ ਸਮਝੋ। ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨਾਨਕ ਨਾਵੇ ਬਾਝ ਸਨਾਤ, ਸਨਾਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨੀਵੇਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੀਵੇਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ। ਸਨਾਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭੂਤਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੂਤਨਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਝ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਜੈ ਕਰ ਸਾਧਨਾ ਸੇਵੀਐ, ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਹੇ, ਤੈ ਘਰ ਮਰਹਟ ਸਾਰ ਕੇ ਭੂਤ ਬਸਹਿ ਤਿੰਨ ਮਾਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਭੂਤ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਓ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਾਤਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲੀਏ, ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਿਰ ਐਸੇ ਦਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਜੇ ਵਟਿਆਪ ਤੇ ਵਡ ਤੇਰੀ ਆਤ, ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਾਰੇ ਕੈ, ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਾਰੇ ਕੈ ਕੀਤੀ ਰਾਤ। ਵਟਿਆਪ ਤੇ ਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਾਰੇ ਕੈ ਕੀਤੀ ਰਾਤ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੇ ਤੇ ਕਮਜਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਝ ਸਨਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ